سب سے پہلے کس چیز کا علاج بتائیں گے؟ جو جس میں خارش بھی آتی ہے، پھوڑے اور پھنسیاں دونوں چیزیں آتی ہیں، اس کے لیے بڑا بہترین قسم کا نسخہ ہے، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ اگر آپ استعمال کریں تو میرا خیال ہے کہ چند دن میں انشاءاللہ پھوڑے پھنسیاں میں ختم ہو جائیں گی اور خارش جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ اس کے لیے بڑا بہترین نسخہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ گندک لے لینی ہے 50 گرام، ٹھیک ہے۔ اس کے برابر ہی یہ ہے ہمارے پاس بابچی، اس کا نام، یہ چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیں دانے ہیں باریک سے، یہ بھی لے لینے ہیں 50 گرام۔ اچھا، بابچی کالی مرچوں کی شکل لگ رہی ہے۔ ہاں لیکن اس طرح یہ دیکھیں، دکھ رہا ہے بابچی، اٹ از جسٹ لائک کالی مرچیں مگر اس کا شیپ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ اچھا، اس کے بعد کالی زیری، ایک ہوتا ہے زیرہ کالا، لیکن آپ نے یہ کالی زیری لینی ہے، یہ تھوڑی سی نا گرین کلر میں ہوتی ہے۔ کالی زیری نکال کے ہاتھ پہ دکھا دیں اپنے، کیونکہ وہ بعد میں نا پہچان نہیں ہوتی، جب میں خود مسئلے میں پھنستی ہو جاتی ہوں۔ کیونکہ اگر آپ غلط چیز استعمال کریں گے تو پھر آپ کو رزلٹ نہیں آئے گا، اس لیے آپ نے اس کو اچھی طرح دیکھ لیں۔ یہ کالی زیری ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے لے لینی ہے 50 گرام، ٹھیک ہے۔ اور یہ بابچی بھی میں نے آپ کو 50 گرام بتایا، اور یہ گندک آملہ سار یہ بھی 50 گرام، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے گیرو، اس کو گیری بھی کہتے ہیں، گیرو انڈیا بھی کہتے ہیں، یہ بھی ایک پتھر ہے، لال رنگ ہے، یہ ریڈ کلر میں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں آپ نے لے لی 50 گرام۔ اب اس کا آپ نے فائن پاؤڈر کرنا ہے، فائن پاؤڈر کر کے 1000 mg کا کیپسول بھرنا ہے، 1000 mg کا، تو ایک کیپسول صبح اور ایک شام۔ یہ پھوڑے پھنسیاں اور خصوصاً خارش کے لیے بہترین قسم کی دوائی ہے۔ اچھا جی، یہ کتنے ٹائم تک کھانا ہے اس کو، کورس کرنا ہوتا ہے جیسے؟ یہ تقریباً آپ 15-20 دن یا 1 مہینہ استعمال کر لیں تو بہترین ہے۔ اچھا، بالکل ٹھیک ہو جائے گا، بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اوپر لگانے کے لیے کوئی چیز؟ لگانے کے لیے بڑی بہترین چیز ہے یہی گندک آملہ سار، یہ عام پنسار سٹور سے نا بڑی سستی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، عام پنسار سٹور سے بڑی سستی مل جاتی ہے۔ یہ جو ہے نا یہ دیکھیں، یہ گندک آملہ سار لینی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے لینا ہے سرسوں آئل، ٹھیک ہے۔ یہ دو چیزیں اس کو کوٹ کے آپ نے اس میں مکس کر لینا ہے، مکس کرنے کے بعد یہ آئل جو ہے آپ نے لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ بہترین قسم کا اس کا رزلٹ ہے، لگانے سے اوپر کی جلد ہے اوپر سے خارش جو ہے فوراً ختم ہو جاتی ہے، تو ویسے بھی اینٹی سیپٹک بھی ہے بالکل، اور یہ اتنی زیادہ استعمال ہوتی ہے کھانے کے لیے بھی اور لگانے کے لیے، تو سب سے بہترین چیز یہی گنی جاتی ہے۔ اس کو کھانے کے لیے لگانے کے لیے دونوں طریقے دونوں طریقے بہترین ہیں۔ کوئی ایک گندک ہے نا جو ایسے کھا نہیں سکتے، وائٹ والی شاید؟ گندک وہ وائٹ والی نہیں کھاتے، یہ بھی عام روٹین میں ہم سادہ نہیں کھاتے کیونکہ اس کا ٹیسٹ نہیں ہوتا کوئی، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نا اگر اس کا ایک اور نسخہ ہے بڑا زبردست قسم کا پھوڑے پھنسیوں کے لیے، اگر آپ اس میں یہ کرتے ہیں کہ آپ یہ اجوائن دیسی عام اجوائن ہے یہ لے لیں 50 گرام، یہ بھی لے لیں 50 گرام، اور اس میں پودینہ یہ بھی لے لیں 50 گرام، خشک والا سوکھا، ہاں جی خشک والا لے لیں، بلکہ اجوائن اس میں 100 گرام کر دیں، 50 گرام گندک آملہ سار لے لیں، اور 50 گرام ہی یہ پودینہ خشک لے لیں۔ تو یہ اتنا زبردست ہے کہ اگر ½ ٹی اسپون صبح و شام کھایا جائے تو یہ بہترین جو ہے مصفی خون ہے، خون کو صاف کرنے کے لیے، دانوں کو ختم کرنے کے لیے زبردست قسم کا رزلٹ ہے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اچھا نسخہ تھا۔ اور اب ہم کیا علاج؟ اس کے بعد یہ پنیر ڈوڈی، پہلے بھی آپ کے ایک پروگرام میں بتایا تھا میں نے، اور بڑا یہ لوگوں نے پسند کیا تھا۔ یہ میں پانی میں رکھ کے پیتی رہی ہوں رات کو۔ کیسی بات ہے، یہ چہرے کے دانوں کے لیے خاص کر کے اتنی کمال کی چیز ہے۔ چہرے کے دانے ہوں، آپ کے پورے وجود میں دانے ہوں، خارش ہو، آپ کو الرجی ہو، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو شوگر ہو، بہترین قسم کی صرف ایک ہی چیز، یہ چھوٹے چھوٹے دانے ہیں رات، اچھا 2 طریقے ہیں اس کے، آپ اس کو رات کو بھگو کے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کو آپ ویسے بھی کھانے کے بعد 2-3 دانے منہ میں ڈالیں اور پانی پی لیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، کڑوے نہیں ہے یہ اس لیے کھانے میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا، بلکہ بھگو کے پینے سے تھوڑا سا پانی کڑوا ہو جاتا ہے، جب آپ کھاتے ہیں نا منہ میں ڈالے اوپر سے پانی پی لیا تب نہیں ہے۔ اور اس کا یہ جو چھلکا ہے یہ چھلکا ساتھ اس کا استعمال کرنا ہے، چبانا ہے؟ ہاں جی، چبانے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے کھائیں اوپر سے پی لیں۔ اور یہ کتنی زبردست چیز ہے، لیکن یہ کڑوی ہے، یہ تو ابھی نہیں ہے اتنی زیادہ ایسے کھانے میں اتنا ہی، لیکن وہ پانی بھگو کے پیئے تو تھوڑا سا کڑوا پانی ہو جاتا ہے۔ ہاں، صبح روز پیتی ہوں میں یہ پنیر روٹی کا پانی، اور میں نے ان سے مشورہ بھی کیا تھا، ہے نا؟ ہاں جی، یہ بڑا بہترین ہے، عام روٹین میں بھی پینا چاہیے اس کا پانی۔ اچھا، گلو کے لیے، چہرے کے لیے بڑی آپ نے کہا شوگر کے لیے، اور دوبارہ بتا رہے ہیں؟ دانوں کے لیے، شوگر کے لیے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی خارش کے معاملات ہیں، الرجی والے مسئلے ہیں، ان کے لیے بڑا بہترین اس کا رزلٹ ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم، یہ دیکھیں کہ نا یہ
पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बाहर अक्सर लगी होती है ये अक्सर प्लाटों में, इसे कहते हैं अफसनतीन। अच्छा। और इतनी ज़बरदस्त ये मुसफ़्फ़ी खून है, अगर आपके दाने हैं या खारिश है, दोनों चीज़ों के लिए अगर आप सिर्फ इसका पाउडर बना के 1000 mg के कैप्सूल भर के खाना शुरू कर दें तो ये कैंसर तक का इलाज है। अगर आप मुसलसल खाते रहते हैं, ये मुसफ़्फ़ी खून है और खून को साफ करती है। और बहुत सारी बीमारियां हमारी जो खून की वजह से होती हैं, आपका जब खून साफ होगा तो फौरी तौर पे आपकी बीमारियां आहिस्ता 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 खत्म। इसका नाम दोबारा बताइएगा। अफसनतीन। अफसनतीन। ये अफसनतीन ये पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पाई जाती है, बाहर के ममालिक में बहुत ज्यादा पाई जाती है, लेकिन मुसफ़्फ़ी खून इतनी जबरदस्त है कि जब आपकी बॉडी में जो खून है उसकी सर्कुलेशन अच्छी होती है ना, आपको बीमारियां नहीं लगती। अच्छा, ये कौन सा नुस्खा जो आप बता रहे थे जिसमें अपनी ये पुदीना भी सूखा डाला था, अजवाइन वाला, ये वाला दोबारा बता दें। इतना ज़बरदस्त नुस्खा है कि स्टमक के लिए जुमला बीमारियाँ जितनी भी हैं, ख़ुसूसन दाने हैं, खारिश है, अगर आपके जो खून गाढ़ा है उसके लिए, टोटल ओवरऑल, बल्कि कॉन्स्टिपेशन भी इससे ठीक होती है। उसमें पुदीना जो है वो आपने लेना है तकरीबन 100 ग्राम ले लें या 50 ग्राम ले लें, यानी कि इसकी मिकदार में बताता हूँ। ये अगर आपने 50 ग्राम पुदीना लिया है, उसके बाद अजवाइन जो है ये आप ले लें कम से कम 100 ग्राम, पुदीना 50 ग्राम, अजवाइन 100 ग्राम। अजवाइन के बाद आपने ये है गंधक आंवला सार, ये आपने लेनी है 50 ग्राम, यानी कि 3 चीज़ें हैं, अजवाइन 100 ग्राम, गंधक आंवला सार 50 ग्राम और ये पुदीना 50 ग्राम। इसका फ़ाइन पाउडर करके ना तो ½ टीस्पून सुबह शाम खाना खाने के बाद अगर इस्तेमाल किया जाए, खाने के 1 घंटे बाद, यकीन करें आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है, अगर आप फिट रहना चाहते हैं ना तो ये ख़ुसूसन ये बारिशों के मौसम में और सर्दियों के मौसम में इस नुस्खे को ना छोड़ें, ये इस्तेमाल करते रहें। अच्छा। बेहतरीन है। ये क्या चीज़ है? ये हाँ, मुसफ़्फ़ी खून, अच्छा, ये जो मैंने बताया ना, ये हमने जो बता रहे हैं ना, ये जड़ी बूटियाँ, हाँ। ये मुसफ़्फ़ी खून हमने एक सिरप बनाया होता है। अच्छा। शरबत बनाते हैं, ये अर्क निकाल के जो बनाते हैं, ये आप भी घर में बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। इसमें अगर आपके पास अर्क प्लांट नहीं है तो आप उसके बगैर भी बना सकते हैं। इसका मैं तरीका बताता हूँ। ये हल्का सा कड़वा होता है, ठीक है, हाँ कड़वा है, तो उसमें ना डालें सारे पानी में, कोई बात नहीं, मैं पी जाऊंगी, कोई मसला नहीं। लेकिन ये इसके फायदे इतने हैं, ये फोड़े, फिंसियाँ, तद्दर, चंबल, खारिश और इसके साथ साथ और भी जुमला अमराज, खून के अंदर कहीं भी आपके ब्लॉकेज है, ऐसे जिनके बहुत बड़े बड़े दाने निकलते हैं, वो कहते हैं जी हमारे तो हर साल ही जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो गढ़ निकलना शुरू होते हैं, बड़े बड़े फोड़े पिंजियाँ। यकीन करें वो 1 से 2 बोतलें ये पी लें, इंशाल्लाह ज़िंदगी में नहीं निकलेंगे। और ये घर में बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें आप जो मुसफ़्फ़ी खून हमने इसमें डाली होती हैं वो आप चीज़ें डाल के, ठीक है, वो चीज़ें ना, हाँ जी, तो उसमें ना, हाँ ये इसमें डाल दें। अच्छा, कितना कोई इस्तेमाल करना है? जब अगर आम रूटीन में आप पीते हैं तो 1 से 2 चम्मच ना आप सुबह शाम, बस इससे ज़्यादा इतना पीना शुरू कर दें। ठीक है, और इसका नुस्खा भी ऊपर हमने इसके लिखा होता है, ये बड़ा आसान सा है। इसमें हमने ये पनीर डोडी इधर पड़ी है, पनीर डोडी डालनी है आपने, तुख्मे नीम, चरायता, मुंडी बूटी, ये देखें ये सामने ही पड़ी है, ये है जी पनीर डोडी जो इसमें डली हुई है शरबत में। ठीक है, फिर उसके बाद ये अफसनतीन, ये भी यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, ये भी इसमें डलती है। उसके बाद ये चरायता है, ये भी इसके अंदर डलता है। ठीक है, चरायता के बाद ये गुले मुंडी, ये भी इसके अंदर डलती है। अच्छा, ठीक है, ये क्या काम करती है? ये सारी मुसफ़्फ़ी खून है। अच्छा, ये सारी चीज़ें डलने के बाद ना ये शरबत तैयार होता है। ठीक है, उसके बाद इसी में ये शाहतरा पड़ा है हमारे पास, ये इसके बाद ये शाहतरा, ये भी इसके अंदर डलता है। ठीक है, और ये है धमासा बूटी, इसके ऊपर अब इतनी रिसर्च चाहिए कि कैंसर के लिए बेहतरीन चीज़ है। अगर आप कैंसर स्टार्टिंग में है ना तो सिर्फ धमासा बूटी लेके इसका कहवा पिलाना शुरू कर दें सुबह दोपहर शाम, कैंसर इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाएगा या वहीं पे रुक जाएगा फौरी तौर पे, क्योंकि ये भी खून की सर्कुलेशन को तेज़ करती है। वाह। और ऐसी ही हमारी बेटियाँ बहनें जिनको अठराह का मसला होता है, अक्सर आपने देखा ना अठराह, बच्चे पैदा होते ही फौत हो जाते हैं या बच्चे ज़ाया हो जाते हैं, तो इसको अठराह कहते हैं। ठीक है, अब उसके लिए सिर्फ धमासा बूटी आप इसको फाइन पाउडर करके तो इसका कैप्सूल भर के सुबह शाम खाने शुरू कर दें, या फिर इसमें पाउडर करके गुड़ मिला के गोली बना लें तो ये खाएं, अल्लाह के हुक्म से दोबारा ऐसा मसला नहीं होगा कि आपके बच्चे ज़ाया हों। यानी कि अठराह का इतना ज़बरदस्त ये इलाज है। तो ये मुसफ़्फ़ी खून भी है, कैंसर का इलाज भी, यानी कि एक जड़ी बूटी है, इसके फ़ायदे देखें कितने ज़्यादा। ये एक्चुअली इम्यून को भी बढ़ाता है, बेहतरीन है इम्यून सिस्टम के लिए। जितनी मुसफ़्फ़ी खून चीज़ें हैं इम्यून सिस्टम को बहुत जल्दी बढ़ाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली तो खून की सर्कुलेशन को बेहतर करती है। तो ये मर्द भी खा सकता है? हाँ, ये कोई भी,
ये देखे ना, जैसे फोड़े फिंचे तो हर किसी को निकलते हैं, कैंसर तो किसी को भी हो सकता को भी, है, तो ये हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, हर किसी के लिए। वो तो इसका एक्स्ट्रा फायदा बता दिया मैंने, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आ जाए, ये जो है ये आपने इसमें आंवला, बेड़ा, हरड़, ये 3 चीज़ें इतनी ज़बरदस्त हैं कि ये मैं समझता हूँ कि आम रूटीन में हर किसी को ये खाना चाहिए घर में, कम से कम साल में ना कोई एक दफ़ा बना के तो ज़रूर खाए, ताकि वो फिट रह सके। आंवले का छिलका या बीज? ये आंवले की गुठली निकाल के ना, ये आंवला जो होता है ना, ये देखें, ये आंवले का पीसा, इसकी गुठली निकाल दें। गुठली निकालने के बाद जो इसका ये छिलका है ना, ये इस्तेमाल करना है। आंवला जो है, गुठली नहीं, अच्छा आंवला जो है इसका आपने ले लेना है 100 ग्राम गुठली के बगैर। उसके बाद आपने ये हरड़ ले लेनी है 50 ग्राम गुठली के बगैर। उसके बाद आपने ये बेड़ा आपने ले लेना है 50 ग्राम गुठली के बगैर। अब तीनों चीज़ें फाइन पाउडर करके ये मिक्स करके रख लें घर में। ½ टीस्पून शाम को आप खा लिया करें असर के टाइम पे। स्टमक के लिए, बालों के लिए, आइज़ के लिए, दिमागी कमज़ोरी के लिए और फोड़े फिंसियों के लिए, यानी कि इतने सारे इसके अंदर आप फ़ायदे हैं कि आप इसे खाना शुरू करेंगे ना, आप खुद कहेंगे मेरे पट्ठों में ताकत आ गई है, मेरे जिस्म के अंदर एनर्जी आ गई है। इसमें तो आंवला भी हेयर फॉल भी रुकेगा। मैं आपको बता, बालों के लिए इतनी कमाल की चीज़ है ये, बेहतरीन। अच्छा, यही तीनों चीज़ें ना इस शरबत के अंदर भी डली होती हैं, ठीक है। अब इस शरबत के अंदर देखिए, मैंने जो सारी चीज़ें बोली हैं, कंबाइन करके शरबत बनाने का तरीका ये है कि सारी चीज़ें आपने थोड़ी थोड़ी ले लें। अगर आपने घर में बनाना है 10-10 ग्राम चीज़ें ले लें, ठीक है। अगर 2-3 बोतलें बनानी, सबको रात को आप भगो दें, अगले दिन 24 घंटे तक ये भगो के रखें। भगोने के बाद फिर आप इसको क्या करें, पकाना शुरू कर दें। अब जब जड़ी बूटियों का जो असर है वो उसके अंदर निकल जाएगा, फिर उसको उतार के पुन लें। पुनने के बाद आपके पास जो वो जुशांदा है ना, उसको फिर आप चूल्हे पे रखें, उसमें आप चीनी डाल लें। अगर आप मीठा पीना चाहते हैं, हाँ जी, मीठा, मगर ये तो कड़वा है। हाँ, लेकिन ये मीठा डालने के बाद भी ये कड़वा ही रहता है, क्योंकि चीजें सारी ऐसी हैं। अच्छा, ऐसा है कि जो लोग शुगर वाले मरीज है ना, वो इसको वैसे ही पी सकते हैं चीनी के बगैर, ठीक है। अगर आपने इसको थोड़ा सा चीनी डालनी है तो इसका कवाम अच्छा करना है, गाढ़ा हो जाए, मजेदार लगे, जैसे वो हमदर्द की साफी होती है उस तरह का। तो फिर आप इसको ना, वो जितना आपके पास पानी है, अगर 5 किलो पानी है तो 5 किलो चीनी इसमें डाल दें, फिर उसको आप पकाएं। जब वो पकाई जाएंगे तो फिर वो आप, जैसे पहले देसी तरीका होता था, अब तो ब्रिक्स वो मीटर आ गए, उसमें 71 या 72 पे जाए था। हाँ, लेकिन पहले तरीका ये होता था कि वो ऐसे निकाल के देखते थे, अगर वो फैल रहा है तो भी तैयार नहीं हुआ, अगर वो ऐसे इकट्ठा हो गया, मोती बनना शुरू हो गया, तो शरबत आपका तैयार है। तो वो शरबत फिर आप इसको, अगर आपने रखना है कुछ अरसा, तो उसमें टाटरी डाल सकते हैं, ठीक है। 10 ग्राम टाटरी एक बोतल के उसमें डलती है, तो आप उस तरह से इस तरह की बोतल्स में फिर रख सकते हैं। हाँ जी। कितने टाइम चल जाती है फिर ये फिर आपकी एक बोतल में 1 ग्राम टाटरी आएगी। अगर 10 बोतलें हैं तो 10 ग्राम टाटरी डाल लें, फिर ये खराब नहीं होता, 3 साल तक आपका शरबत खराब नहीं होगा, ठीक है। ये शरबत तैयार करके घर में आप पी सकते हैं, दानों के लिए, खारिश के लिए, चंबल के लिए, दद्दर के लिए बेहतरीन चीज़ है कि आप ये इस्तेमाल कर लें। और ये बाकी शरबत किस चीज़ के थे? हाँ, ये दोनों भी इसी तरह ही। अगर आपके अंदर ना खारिश और खून का गाढ़ापन बहुत ज़्यादा आ गया है, एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उसके लिए फौरी तौर पे खारिश को ख़त्म करने के लिए अगर आप दोनों के अरक पी लेना, दोनों मिक्स करके, ये अरके उशबा है और ये अरके शातरा है। पीना पानी में ही है? पीना पानी में पी लें, वैसे पी लें, और जैसे इसमें आप डाल के पी सकते हैं। अच्छा, ये इतना अच्छा अरक है। कितना डालेंगे देख लें क्वांटिटी? ये देख लें क्वांटिटी ना आपने, बिल्कुल जैसे 3 से 4 चम्मच। अच्छा, इसकी एक और बात बताऊँ, ये जो बीमारी ना वेरिकोज वेन, वो खून के गाढ़ापन की वजह से। वेरिकोज वेन क्या होती है? ये ब्लॉकेज आ जाती है, आपने अक्सर देखा रगे, सही से रगे सूज जाती हैं, और वेरिकोसेल अक्सर हो जाता है। अब ये जो बीमारी है उसका ताल्लुक भी इसके साथ है। ये जितनी भी मुसफ़ी खून चीज़ें हैं, ये आपकी खून की सर्कुलेशन इतनी बेहतर कर देती हैं, जो भी खून के रिलेटेड बीमारी होती है वो ठीक हो जाती है, छोटी शनियानों में भी। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके लिए आप वेरिकोज वेन के लिए भी ना, आप ये अरके उशबा और अरके ये शातरा पीना शुरू करें इसी तरह, तो यकीन करें आपका ये वाला मसला भी हल हो जाएगा।